Okay. So, ladies and gentlemen, the topic which we are starting today is network layers. The question is, you may ask, why network layers? The answer is, as I said earlier, many times, that basically we are studying the TCP/IP suite or model. And in this model, the lowest layer is your physical layer, then is your data link layer, and then is your network layer. That because yesterday we completed the data link layer and we took an example of the data link layer as an Ethernet. And we will be also taking an example in the next course about the Wi-Fi. But now we took in the last class, in yesterday, we talked about a complete module, which is module 7, about the Ethernet technology, and Ethernet technology lies on the data link layer. Now, I hope we understand that we should go to the network layer. And after completing this network layer, there are multiple modules on the network layer, because here we have to study very important topics like, for example, IPv4, IPv6, and then we will be moving to the transport layer and finally to the application layer. So that is the reason we are today on the network layer. ठीक है जी, तो लॉजिक बन गया कि क्यों हम नेटवर्क लेयर पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे. सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अगर कोई भी चीज पढ़नी है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. So, ladies and gentlemen, these are the objectives which we need to cover in this module. The first is the lazmi taur pe, if you want to cover the network layer, what are the characteristics of this layer? Explain how the network layer uses IP protocol for reliable communication. Then we will be covering the very important topic, and that is the header of IP version 4. Header of IP version 4. क्योंकि हमें पता है कि every layer performs encapsulation. Every layer performs encapsulation. And during encapsulation, what it do? It adds the header. So we will talk about the syntax and semantic of initially IP version 4 header and then the IP version 6 header. We will also see why, if the IP version 4 is there, then why we went for IP version 6. An important question is, when the IP version 4 is there, why we went for IP version 6. Then we will see that one of the very important, and these IP version 4 or IP version 6, what they perform, they provide, number one, as I said earlier, that in this every layer perform encapsulation. And the second thing, which seems to me like here, that what this IP version 4 or 6 do, they provide an address to the interface. So it means the second functionality or purpose of this layer is to provide the address. Then we will be talking about the third thing. Based upon this address, the machines, the routers, perform routing. Like, for example, I am sitting here in Peshawar and I am connected with the Zoom, which is in US. So definitely my packets from Peshawar are going to the US. How it happens? Because of the routing. If the routing functionality is not there, definitely such communication can never occur. बात समझ आ रही? तो इसलिए we will be in this part, we will be touching the routing as well. And then we will see that this routing is based upon certain data structure which is called routing table.
or you may call it routing information base. Routing information base, RIB. तो आपको एटलीस्ट ये बात यहां से आपको क्लियर होगी या समझ आ गई होगी कि ये 5 टॉपिक्स की कहानी जो है, क्या ये कोई डिस्कनेक्टेड कहानी है या ये रिलेटेड कहानी है, क्या हर टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ कुछ वो रखता है या नहीं रखता है, रिलेशनशिप है या नहीं। तो यहां से कम मुझे फील होता है कि हर टॉपिक का दूसरे टॉपिक अगले टॉपिक के साथ एक ताल्लुक मौजूद है, इसलिए पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं एंड देन वी मूव फर्दर। क्यों मोहम्मद नूर, कल आप नहीं थे जी, कैसा क्लियर है एनीवन? ओके, देन अगर आपको मेरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई मसला नहीं है तो देन वी मूव टू द फर्स्ट टॉपिक which is the network layer characteristics. But if any one of in the online, maybe Amir, Kainat, Muazzam, Ashfaq, Nurul Haq, Kainat, कोई भी अगर किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अगर आपका क्लैश है तो बात समझ में फिर नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। शाबाश। थिंक नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन। लगता है आपके भाई के मसरूफियात में कमी नहीं आ रही, क्या ख्याल है मौसम? ईसा जो है जॉब हो गई है। जॉब हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे। नहीं सर, असल में वो टाइमिंग उसकी कुछ इस तरह है तो वो कह रहा मैं मैनेज करूंगा इनके साथ फिर आगे, और साथ में वो एमएस भी कर रहा है तो अच्छा, शौक तो है जॉब नेटवर्किंग के साथ। सर पता नहीं वो कुछ डेटाबेस में वो जो इंटरनेट पर जो वो प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं कुछ उस कंपनीज को वगैरह को कुछ इस तरह का वो। चले ठीक है। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एनीवन फ्रॉम द फिजिकल क्लास, ऑफलाइन क्लास, डू यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? नो। अगर नहीं है तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज नेटवर्क लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जेंटलमैन, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, पहली बात कि ये लेयर 3 का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले कहा ये लेयर 3 का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने फिजिकल और डेटा लिंक कर लिया है। अब नेचुरली वी शुड बी ऑन द नेटवर्क लेयर और द इंटरनेट लेयर। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें करनी चाहिए, दैट इज आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। बस ये उसी तरह है कि किसी मुसलमान को कलमा पढ़ो और वो कहे कलमा में ना राजी और सब पढ़ेगा, तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है। तो अगर किसी नेटवर्क इंजीनियर को ये 2 चीजें नहीं आती तो बस समझ लें कि वो कम से कम नेटवर्क इंजीनियर नहीं है, बाकी जो मर्जी कहता है सुन लें उसके बाद। तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ठीक है जी। तो जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि इसके अगर आप 4 चीजें देखें जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट की, कि सबसे पहला काम मैं ये कहूंगा कि ये इनकैप्सुलेशन करता है। मोहम्मद नूर, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि ये अपना हेडर, ये लेयर अपना 20, अभी बताऊंगा कि 20 बाइट्स का हेडर ऐड करता है। किसके साथ? जो पेलोड इसको ट्रांसपोर्ट लेयर देती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया कि अगर ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है, ये फिजिकल लेयर है, तो आपकी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, बिट्स क्रिएट करती है। ये बिट्स दे दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड करता है, फिर हेडर ऐड करके नीचे की लेयर कोई नहीं, नेटवर्क लेयर के हवाले कर देता है। नेटवर्क लेयर अपना हेडर इस हेडर के साथ ऐड करता है। इस अमल को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो देखेंगे कि इस 20 बाइट्स का ऑर्डर क्या है और हर एक बिट या बाइट जो ऐड होती है उसका फंक्शन क्या है, मीनिंग क्या है। ऑर्डर को सिंटैक्स कहते हैं
और मीनिंग या फंक्शन को सिमेंटिक कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। क्लियर है एवरीवन? ओके। लाजमी तौर पे अगर ये हेडर ऐड करता है तो रिमूव, जब इसने कोई हेडिंग की है तो रिमूवल भी यही करेगा, उसको रीड भी यही करेगा, उसको प्रोसेस भी यही करेगा। तो इसको हेडर को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकैप्सुलेशन। तो इसलिए जरूरी है कि हमें यह बात पता हो कि हमारा ये नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेशन भी करता है, डीकैप्सुलेशन भी करता है। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया, बल्कि यहां पे कहना चाहिए एड्रेसिंग एंड डिवाइसेस की बजाय मैं ज्यादा इफेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा कि एड्रेसिंग इंटरफेसेस, एड्रेसिंग इंटरफेसेस। अब ये इंटरफेस किसी एंड डिवाइस की भी हो सकती है, किसी राउटर की भी हो सकती है, यानी कि इंटरमीडिएट डिवाइस की भी हो सकती है। यही इंटरफेस जो है किसी सिक्योरिटी डिवाइस की भी हो सकती है। यही इंटरफेस किसी मिडल बॉक्स की भी हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ एंड डिवाइस कहना थोड़ा जायज नहीं लग रहा, लेकिन गलत भी नहीं है, एंड डिवाइस भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि मेजॉरिटी डिवाइसेस तो एंड डिवाइसेस हैं। ऐसा ही है ना? मिसाल के तौर पे आपकी पूरी यूनिटी में डिवाइसेस की तादाद तो हो सकता है 20,000 हो, लेकिन राउटर्स की तादाद शायद 2-3 हो या एक ही हो। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट करते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि इट इज एड्रेसिंग द इंटरफेसेस ऑफ डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस कैन बी एंड डिवाइसेस, can be the intermediate devices, can be the security devices, can be the middle boxes. Any question from anyone? Shabash. Is there any query? नासिर, कुछ क्यूरी बन रही है? नहीं बन रही, चलें आपकी मर्जी जी। और जब इसका नाम, एड्रेस का काम क्या है? एड्रेस का काम है इसको नाम देना, ग्लोबली यूनिक नाम देना। एड्रेस का क्या मकसद क्या है? क्यों हम एड्रेस ऐड करते हैं? क्योंकि आई वांट टू गिव दिस इंटरफेस अ ग्लोबल यूनिक नेम। तो जब इसने नेम दिया तो इस नेम की बेस पर हम इसके पास पहुंचते हैं, यानी कि रास्ता ढूंढते हैं, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड राउटिंग। जो उस पर 4 पॉइंट लिखे थे, ऑर्डर में मैंने करके 1 2 3 4 आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं किसकी, या ऑपरेशंस हैं जो कि नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई और आपके जहन में हो कि वो ये करती है तो बोल दे, या ये बोल दें कि ये नहीं करती, इन 4 में से ये 2 करती है 2 नहीं करती, कुछ भी आप कह सकते हैं। जी नहीं, बात समझ आ रही है? आप लेट आए हैं, लेकिन तो हमने आज अभी नेटवर्क लेयर के ऊपर अपनी स्टडी को शुरू किया। क्लियर मोहम्मद नूर? जी नहीं, नेम तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने डिवाइसेस को नाम दिया। मिसाल के तौर पे हमारी यूईटी का एज्यूम कर लें कि हमारे पास सीएमएस का सर्वर है जो कि डेटाबेस सर्वर है। इस सर्वर को आईपी दिया किसने? लाजमी तौर पे हमने किसी से खरीदा आईपी, ये नहीं कि आईपी हमारी अपनी इजाद है। हमने मिसाल के तौर पे कहा पर्न को कि जी हमें लेट करें 5 आईपी चाहिए, हमने उसमें से एक आईपी इस डिवाइस को असाइन कर दिया। अब और इसके साथ साथ हमने अपना पूरा डोमेन, जिस डोमेन पूरा यूईटी का डोमेन, वो हमने कहीं डीएनएस सर्वर के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है। तो अब दुनिया में कोई भी अगर लेट करें अमेरिका से कोई आता है और हमारे लेट करें www.uitpeshawar.edu.pk पे आता है, तो उसके डीएनएस का हम इसमें पढ़ेंगे। डीएनएस का पूरा एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू उसको पता चलता है कि यूईटी का ये आईपी एड्रेस है। मेरी बात समझ आ रही? अब उस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचता है।
यहां तक पहुंचने के अमल, जिस पर नेटवर्क उस अमल को जितना करवाता है, इस अमल को कहते हैं रूटिंग। फाइंडिंग ए पाथ, शॉर्टली ये कहूंगा, फाइंडिंग ए बेस्ट पाथ। अब बेस्ट की डेफिनेशन कुछ कुछ भी हो सकती है, तो हर एक के लिए बेस्ट उसकी मर्जी के मुताबिक होता है, ठीक है ना। तो फाइंडिंग ए बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन, तो किस बेस पे होगा? लाजमी तौर उसके नाम के बेस पे होगा, उसके नाम के जरिए हम उसको सर्च करेंगे, उस तक पहुंचेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रूटिंग। क्लियर है साहिब? ओके नाइस। तो ये है जी 4 ऑपरेशंस जो कि हमारा नेटवर्क लेयर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चला जाऊं। चलें जी, अच्छी बात है अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो। जेंटलमैन, इसके बाद मैं आता हूं, एक एक टर्म को हम वो कर सकते हैं। अब चार ऑपरेशन मैंने बताए, मैंने आपको पहले क्लियर कर लिया कि इंकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, कि जो भी ऊपर की लेयर से डेटा आए उसको हम पेलोड कहते हैं। जो भी ऊपर की लेयर से डेटा आए उसे हम क्या कहते हैं? पेलोड। और जब पेलोड के साथ हम हेडर ऐड कर देते हैं, इस अमल का नाम है इंकैप्सुलेशन। तो हमने यानी आईपी लेयर ने यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 बाइट बाय डिफॉल्ट ऐड कर दी। इस 20 बाइट के एडिशन को इस लेयर पे हम कहेंगे नेटवर्क लेयर इंकैप्सुलेशन, ठीक है। ओके, तो ये वही कह रहा है कि आईपी इंकैप्सुलेट द ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां देखें, ये जो अभी पेलोड आपके पास आया है, दैट इज ए पेलोड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसने ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ अपना हेडर ऐड कर दिया, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इंकैप्सुलेशन। तो यूं सेगमेंट जो ऊपर से आया, इसने उस सेगमेंट के साथ अपना हेडर लगा के, अब हम इसको या तो पीडीयू कहेंगे, जेनेरिक नाम पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, या एग्जैक्ट नेम हम इसको कहेंगे दिस इज दी आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। क्लियर होगी बात? ओके, यहां पे फिर यही कह रहा है, इट कैन बी यूज इधर IPv4 और IPv6 पैकेट एंड नॉट इम्पैक्ट दी लेयर 4। यानी लेयर 4 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेयर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसके नीचे लेयर 2 है कि आप यहाँ पे लेयर वर्जन 4 इस्तेमाल करेंगे या वर्जन 6 करेंगे, ठीक है। अब जी श्योर, एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है, ठीक है, ओके जी, क्लियर। आगे चलते हैं। अगर ये आईपी वर्जन 4 होगा तो 20 बाइट्स हैं, अगर ये IPv6 होगा तो 40 बाइट्स हैं। तो एक्सप्लेन करूंगा कि 20 बाइट्स में क्या है और 40 बाइट्स में क्या है। फिर कहता है आईपी पैकेट विल बी एग्जामिन्ड बाय ऑल द लेयर 3 डिवाइसेस। जितने भी रास्ते में लेयर 3 के डिवाइसेस हैं, जो तो मोस्टली राउटर्स हैं, हर लेयर, हर राउटर, हर डिवाइस लेयर 3 का इस हेडर को पढ़ेगा, समझेगा भी, पढ़ेगा भी, हटाएगा भी और दोबारा लगाएगा भी। यानी इनकैप्सुलेट भी करेगा, डीकैप्सुलेट भी करेगा और री इनकैप्सुलेट भी करेगा। क्लियर मेरी बात? यहां पे कह रहा है कि आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी वो कहना ये चाहता है स्वदेश कि अगर ये मेरा पिशावर है, यूईटी पिशावर है, अगर मैं इस यूईटी पिशावर से अपनी डेटा को लेट करें जूम के पास भेजता हूं या नेटकैट यानी सिस्को अकेडमी के पास भेजता हूं, तो जो मेरा आईपी है, मेरा आईपी क्या है इस वक्त बताता हूं, और जूम का क्या आईपी है ये भी बता सकता हूं। क्लियर? मिसाल के तौर पे मेरा क्या आईपी है इस वक्त, जेंटलमैन, मेरा आईपी है
मेरा आईपी है माई आईपी एड्रेस, जी, तो कोई ये मेरा आईपी एड्रेस जूम की तरफ जा रहा है, विच इज 121.52.147.88। ये है वो आईपी जो कि जूम को लग रहा है कि मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। क्लियर? ओके। जूम का क्या आईपी है वो मैंने अपने डीएचसीपी से पूछ लिया। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं नहीं जी बताओ, तो हम बता भी देते हैं आपको। यहां पे हम करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, वन ऑफ द मेथड, और यहां पे मैं करता हूं पिंग www.zoom, देखना पड़ेगा zoom.org है या org, प्रॉब्लम यही है, नहीं zoom.com चेक कर लेते, नहीं तो उधर से देख लेते हैं जी। ये इसका आईपी एड्रेस 170.114.0.15, तो सोर्स हुआ 121 वाला एड्रेस, डेस्टिनेशन हुआ 170 वाला एड्रेस। तो इसका मतलब कि सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस बताना मकसद इसका ये था कि सुदेश, बताना मकसद ये था कि सोर्स से जब ये पैकेट चलेगा तो इस पे आईपी एड्रेस लिखा जाना चाहिए 121 ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैंने भी आपको बताया, और डेस्टिनेशन का एड्रेस आज इस पे लिखना चाहिए 170, जो भी मैंने बताया अभी। क्लियर? तो जब ये अपना हेडर इसके साथ ऐड करेगा, IPv4 का हेडर 20 बाइट, तो उसमें सोर्स की जगह अपना ये एड्रेस डालना चाहिए सोर्स आईपी में, ये 121 वाला, और डेस्टिनेशन आईपी में ये 171 वाला एड्रेस यहां पे डालना चाहिए। क्लियर? है कोई कंफ्यूजन? सही है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। लेकिन एक पॉइंट पे वो कहता है कि जनाब, कहना वो ये चाहता है कि ये बात एक जगह पे गलत हो सकती है। कहता है आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू, लाजमी तौर पे यूटी से जब ये जूम तक जाएगा तो कोई डायरेक्ट लिंक तो मेरा इसके साथ नहीं है, रास्ते में हो सकता है कि 15 दूसरे राउटर से होके ये यहां पहुंचे, ऐसा ही है ना? तो कोई भी राउटर सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी तब्दील नहीं करेगा, ये वो कहना चाहते। जिसे आपने देखा था कि जब हमने मैथ पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हर एक हॉप के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन बदल जाएगा, सोर्स हर हॉप बन जाएगी और डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप बन जाएगी। यहां पे वो कहता है नहीं, ये तब्दील नहीं होंगे। क्लियर? मां सिवाय एक जगह पे, जिसको आगे जाके हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, जिसको नेट कहते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नेट का काम क्या है? अभी आपने देखा, और जूम भी यही कहता है कि मेरा आईपी एड्रेस 121 डॉट जो भी मैंने लिखा था वो है। लेकिन अगर मैं आपको दोबारा अपनी मशीन दिखाऊं, मैं आपको अपनी मशीन दिखाऊं, तो जेंटलमैन यहां पे मैं करता हूं आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे वाईफाई का एड्रेस ये है, क्या है? 10.137.12.25। तो क्या मेरी पहली बात दुरुस्त थी या मेरी दूसरी बात दुरुस्त है? अब मैं कह रहा हूं कि मेरे इस वाईफाई का आईपी एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस जो स्क्रीन पे हाईलाइटेड है वो ये है 10.137.12.25, और साथ में ये भी कह रहा हूं कि जी मेरा एड्रेस जो है वो ये है 121.52.147.88। तो कौन सी बात दुरुस्त है? तो जेंटलमैन, दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। कैसे दोनों बातें दुरुस्त हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा कि अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 में आपको ये बताऊंगा कि
आईपी एड्रेस दो किस्म के होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो जेंटलमैन मेरा ये पब्लिक आईपी जो था ये 121 की सीरीज का है, जबकि मेरा प्राइवेट एड्रेस जो है वो 10 की सीरीज में इस वक्त है। लेकिन इस प्राइवेट एड्रेस के साथ मसला ये है कि ये मुझे दुनिया में के साथ बात कराने के काबिल नहीं, ये राउटेबल नहीं, ये राउटेबल नहीं। इस वजह से हमने दो एड्रेसेस में रखे हुए हैं। मैं अपने लैन के अंदर तो इस प्राइवेट एड्रेस से बात करता हूं और नजर भी यही आ रहा है स्वदेश, लेकिन जब मैं जाना चाहता हूं रिमोट, जैसे जूम के पास, नेटकैट के पास, तो मैं अपने एड्रेस को तब्दील कर देता हूं पब्लिक आईपी से, जो कि ये 121 है। इस अमल को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहां एक दफा ये एड्रेस तब्दील हो जाएगा, डेस्टिनेशन नहीं तब्दील हुई, सोर्स एक दफा। पहली दफा मैंने जब पैकेट बनाया तो उसमें मैंने 10 डॉट समथिंग डाला, लेकिन जब ये मेरे गेटवे पे पहुंचा तो मोस्टली वहां पे नेट इंप्लीमेंटेड है, उसने मेरा ये एड्रेस, उसको पता है कि ये प्राइवेट एड्रेस है, इसके साथ मैं किसी भी दूसरे नेटवर्क पे नहीं जा सकता। इस वजह से उसने मेरा आईपी तब्दील किया एक दफा, और मुझे इस एड्रेस के साथ फिर मैं पूरी दुनिया के साथ बात करता। इसलिए यहां इसने लिखा है कि नेट विल चेंज एड्रेसिंग बट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर मॉड्यूल। गॉट इट? ओके। अगर ये मेरी बात भी, जी, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? नूरुल हक, राबिया साहिब, सुदेश, जी शाबाश, इज देयर एनी क्वेश्चन in the chat? Is no sir. Okay, so कायनात, हम अब कह रहे हैं कि आईपी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एक और भी ऐड कर दूं, नॉन रिलायबल या अनरिलायबल, नो रिलायबल, नॉट रिलायबल, तो ये भी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर सकते। पहला पॉइंट है कनेक्शनलेस। समझ जाओगे कनेक्शनलेस किसे कहते हैं, अभी क्लियर करता हूं। नंबर 2, बेस्ट एफर्ट। नंबर 3, मीडिया इंडिपेंडेंट। एंड नंबर 4, नॉन रिलायबल। क्या है जी? 4 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस आईपी की। और फिर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई जब ये कनेक्शन भी लेस है, ये नॉन रिलायबल भी है, तो क्यों इस्तेमाल क्यों करते हो? वो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो जवाब भी मिल जाएगा। इसलिए आप अपने पास अपने क्वेश्चंस लिख लिया करें। कनेक्शनलेस का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि 2 तरह से एग्जांपल देता हूं। अगर लेट करें कि ये आपका पोस्ट, कभी आपने कोई पोस्टल सर्विस के जरिए कभी कोई लेटर लिखा है या किसी को भेजा है? यस, ठीक है, अच्छी बात है जी। आप करते क्या है, आप एक जो भी एप्लीकेशन है, लेटर है, जो भी है, वो आपने टाइप कर लिया, लिख लिया, और आप उसको एक इन्वेलप के अंदर बंद कर देते हैं, ऐसे ही है ना? एनवेलप के फ्रंट एंड के ऊपर आप अपने डेस्टिनेशन का एड्रेस, और नॉर्मली बैक साइड पे आप अपना एड्रेस यानी सोर्स का एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिख देते हैं, ऐसा ही है ना? वेरी नाइस। और इस उम्मीद के साथ, क्या आपने कभी पहले अपनी डेस्टिनेशन को पोस्टल सर्विस में चेक किया कि वो है भी कि नहीं है? नहीं। क्या वो आपका खत पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड भी है या नहीं है? नहीं। आप कभी भी ये चेक नहीं करते। बस आप इस खत को उठा के एक लेटर बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये पहुंच जाएगा। आपने अपनी डेस्टिनेशन के साथ कोई राब्ता नहीं किया कि क्या वो डेस्टिनेशन है भी कि नहीं है।
क्या वो डेस्टिनेशन लेने के लिए राजी है भी कि नहीं है? नहीं, ऐसी कोई आपने वो काम नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेथड जो है, ये पोस्टल सर्विस का मेथड जो है, ये कनेक्शनलेस। मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रंट पे उसको एड्रेस लिख दें, जूम कर लेते हैं, आप वहां पे एड्रेस लिख दें, डिपार्टमेंट ऑफ, लेट इट बी एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी यूईटी पिशावर। तो क्या यूटी पिशावर में कोई एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट है? नहीं है, तो एड्रेस गलत है। लेकिन कोई आपको मारेगा कि जी यहाँ पे लेटर नहीं डालोगे? नहीं, डाल दो। लेट करें, ये खत जो है आ रहा है कराची से, कराची से खत पहुंचेगा यूटी तक, यहाँ पे आके पता चलेगा एग्रोनॉमी तो यहाँ नहीं है, बस ड्रॉप हो जाए। किसी ने पहले वहां से कराची से चेक नहीं किया कि यहाँ पे एग्रोनॉमी का कोई डिपार्टमेंट है या नहीं है, हॉर्टिकल्चर का कोई डिपार्टमेंट है या नहीं है, नहीं, या फिजिक्स का कोई डिपार्टमेंट है, नहीं है। ठीक है, लेकिन खत जाएगा। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं है तो बस ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये मेथड, पोस्टल सर्विस का मेथड क्या है? कनेक्शनलेस। क्लियर जेंटलमैन? हमारा आईपी भी बिल्कुल इसी तरह है, हमारा आईपी भी बिल्कुल इसी तरह है। यहां पर भी आप अपना मैसेज को नेटवर्क पे डालते हैं और कभी भी चेक नहीं करते कि डेस्टिनेशन ठीक है या नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, डेड है या एक्टिव है, नहीं, ये नहीं चेक करते। इसलिए हम कहते हैं हमारा आईपीवी जो है वो पोस्टल सर्विस की तरह कनेक्शनलेस है। जी मामा, एनी क्वेश्चन? नो? जी नहीं, क्लियर होगी बात? तो ये क्या है? कनेक्शनलेस। इसके मुकाबले में आपने देखा होगा जब आप मोबाइल पे कॉल करते हैं किसी को, तो क्या होता है, कुछ सेकंड्स नेटवर्क लेता है और फिर आपको पता चलता है कि जी कॉल जा रही है, रिंग जा रही है। उस रिंगिंग के दौरान क्या होता है, आपके लिए कनेक्शन, अगर वो है ही नहीं, नंबर है ही नहीं, तो कभी भी उसको कॉल नहीं जाएगी। इसका मतलब पहले वो कनेक्शन बनाता है, जब कंफर्म हो जाता है कनेक्शन, नेटवर्क भी है, डेस्टिनेशन भी है। अब डेस्टिनेशन की मर्जी है कि ग्रीन बटन प्रेस करे कि रेड करे। ग्रीन करता है तो इसका मतलब है कि जी हाँ, बात शुरू कर दो, इसका मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है। जबकि आईपी में कभी भी आपने कभी ईमेल की है, कभी ये किया कि पहले चेक कर लूं कि ईमेल एड्रेस कोई है भी कि नहीं है, या कभी आपने अपना कोई वेब एड्रेस लिखे, यूआरएल लिखे, कभी आपने चेक भी किया कि यूआरएल कभी है भी कि नहीं है? नहीं, इट इज कनेक्शनलेस। आईपी इज कनेक्शनलेस। बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो दूसरी बिल्कुल ही समझ के काबिल है, बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का मतलब ये है कि जैसे आपने अपने ये पोस्टल एड लिखा, खत भी लिख दिया, एनवेलप पे भी डाल दिया, सोर्स का फ्रंट पे सोर्स का एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन का एड्रेस, बैक पे सब कुछ कर दिया, जाके लेटर बॉक्स में भी डाल दिया, उस पर स्टैंप भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पहुंच जाएगा, यानी अपनी तरफ से आपने कोशिश कर ली, बाकी भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए, जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। दैट द रीजन वी कॉल इट बेस्ट एफर्ट। ठीक है, अब क्योंकि बेस्ट एफर्ट है, तो मैंने कहा पहुंच जाए तो खुशी, ना पहुंचे तो कोई गम नहीं। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इट इज नॉट रिलायबल, इट इज नॉट रिलायबल। अपनी तरफ से कोशिश करके, जैसे आपको कोई कहता है कि जी दा कारबो के, आप कहते हैं इंशाल्लाह, इन्हें अगर अल्लाह ने चाहा तो कर देंगे, और अगर अल्लाह ने ना चाहा तो गम गम बने के अनरिलायबल है। ठीक है ना जी, क्लियर होगी मेरी बात? आखिरी बात जो मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन की वो है मीडिया इंडिपेंडेंट।
कि आपको पता है कि मीडिया मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। मीडिया आपका गाइडेड भी हो सकता है, मीडिया आपका अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड से मुराद कॉपर भी हो सकता है और फाइबर भी हो सकता है। अनगाइडेड से मुराद वायरलेस भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, इवन वाटर भी हो सकता है। ऐसा ही है ना? क्या कभी आईपी ने ये आपसे कहा कि जनाब बताओ ये तुम कॉपर पे भेजोगे, अगर कॉपर पे भेजोगे तो क्या ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करोगे या कोएक्सियल इस्तेमाल करोगे? क्या कभी उसने पूछा कि आप सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल करोगे या मल्टी मोड फाइबर इस्तेमाल करोगे? नहीं। कभी आपसे आईपी ने पूछा क्या वायरलेस पे जाओगे? क्या उसने कभी आपसे पूछा कि क्या तुम वैक्यूम से इसको पास करोगे? नहीं। चाहे कोई भी मीडियम है, आईपी डजंट केयर। आईपी का ये काम ही नहीं है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि मीडियम का ख्याल रखे और उसके मुताबिक एक्ट करे। नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अभी की एग्जांपल ले लें मेरे, तो मेरे लैपटॉप आप देख रहे हैं कि मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्या मैं इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हूं? तो नहीं। क्या मेरे साथ कोई तार हर एक के लिए कोई वायर आई हुई है? नहीं। तो मैं किस तरह जा रहा हूं भाई? मैं वायरलेस के थ्रू जा रहा हूं। जो ही आप डोर के बाहर पहुंचते हैं तो आपको एक छोटा सा वाइट लाइट वेव एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है। लाइट वेट से ये मुराद नहीं है कि कल आप यहाँ आओ जी ढेर बहुत हल्का है इसलिए लाइट वेट है। क्यों जी? और कहेंगे जी जो लैब में लगा हुआ है उसको मैं कभी भी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट नहीं कहता, वो अगर लग डराना भाई। क्यों जी? ऐसा ही है। रिकॉर्डिंग है। नाइस। तो हम बात कर रहे थे बाद में ये कर रहा था कि मैं, ये मेरा पीसी है, मेरा लैपटॉप है, यहां से मैं वायरलेस के थ्रू इस लाइट वेट एक्सेस रूटर या एक्सेस पॉइंट के पास पहुंचा। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, आप में से मुझे कोई बता सकता है, मोहम्मद नूर या ये लोग तो काम कर रहे हैं उस पर, इस लाइट वेव एक्सेस पॉइंट से जो यहाँ पे स्विच है, क्योंकि मैं ईडीरोम पे हूं इसलिए मैं उसकी एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से इस लाइट वेव एक्सेस पॉइंट से ये स्विच जो कि आपको पता है कि नीचे स्टीयर्स में लगा हुआ है, इस स्विच तक कौन सा मीडियम है? वायर में कौन सा? ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। तो यहां पे यूटीपी है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से स्विच से मैं राउटर तक पहुंचा जो कि प्रॉब्ली सीएमएस में है। एम आई राइट? तो इस राउटर तक मैं पहुंचा जो कि सीएमएस में है। यहां पे कौन सा मीडियम है? फाइबर, सिंगल मोड फाइबर। तो आप देख रहे हैं कि कभी मैं वायरलेस पे हूं, कभी मैं यूटीपी पे हूं, कभी मैं फाइबर पे हूं। तो दैट्स ए ग्रेट, मतलब बात चीजों का ना पता होना भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। तो ये नेमत है कि मुझे नहीं है, मैं कभी मैंने नहीं कहा कि भाई मेरा ये मीडियम पे जाएगा, क्योंकि अगर मैं कहता वायरलेस तो यहाँ पे वो कहते हैं वायरलेस तो नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे आता तो मैंने कहा अगर यूटीपी का होता तो कहता जान तो फाइबर है, नहीं जाएगा। इसलिए ये काम इस लेयर के, इस आईपी लेयर के या नेटवर्क लेयर के हवाले ही नहीं किया गया, इसलिए हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है मीडिया से। जो भी मीडियम है फिक्र है निश्ता, ठीक है नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि इस लेयर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कनेक्शनलेस है, ये बेस्ट एफर्ट है, ये अनरिलायबल है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो वन बाय वन देख लेते हैं।
पहला हमने कहा कि इट इज कनेक्शनलेस, और वही एग्जांपल जो मैंने आपको कुछ देर पहले दी पोस्टल सर्विस की, ये उसी को आपको एग्जांपल में दे रहा है कि आप लेटर डालते हैं, मेल बॉक्स में डाल देते हैं, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और कभी भी नहीं देखते कि डेस्टिनेशन है भी कि नहीं है। इवन आप इस लेटर के ऊपर एड्रेस जो है किसी कब्रिस्तान का लिख दें, फिर भी ये लेटर बॉक्स में डालने पे कोई पाबंदी नहीं है। फिर भी ये बुक ये जो भी स्टाफ है ये इसको लेकर जाएगा, नहीं कहेगा कि जी ये तो कब्रिस्तान का एड्रेस है, इसमें तो कब्र नंबर 10 लिखा हुआ है। क्लियर? इसलिए हमने कहा कि आईपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग द पैकेट। पैकेट भेजने से पहले कभी भी नहीं चेक करता कि डेस्टिनेशन वाकई है, और अगर है क्या वो इसके लिए इसको लेने के लिए रेडी भी है कि नहीं है। फिर लाजमी तौर पर जब इसको इसका इराम नहीं है कि है या नहीं है, तो ये कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं एक्सेप्ट कहता, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए तो कह रहे हैं कि जब एक्नॉलेजमेंट को पता ही नहीं चलता कि मैंने जो पैकेट भेजा है वो पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा, इसलिए तो मैं फिर अनरिलायबल नहीं कह सकता। कह सकता हूं भाई मैंने जैसे इस आपने यहां से खत भेजा, तो कभी भी आपको नहीं पता चलता कि खत पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ये पोस्टल सर्विस ये अनरिलायबल है। फिर कहता है कि जी द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स बट नो प्री नोटिफिकेशन आर सेंड बाय आईपी। पहले से कोई नहीं बताया जाता डेस्टिनेशन को, रेडी शाह पैकेट राजी लगे आ रहे, नो। कोई एक्नॉलेजमेंट आईपी को नहीं आती, कोई रिप्लाई। आपने मिसाल के तौर पे पिंग किया तो फिर तो रिप्लाई आएगा, लेकिन वो रिप्लाई वो भेजेगा। लेकिन ये तो मैंने इसकी एग्जांपल दी, आप किसी को ईमेल भेजते हैं, क्या आपको एक्नॉलेजमेंट आती है कि ईमेल जरूर से दो? नहीं। नहीं, सेंट में तो आता है कि आपसे एक तरफ से चली गई है, उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अल्लाह को पता है। वेबसाइट में वो आपको जवाब, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो रिप्लाई भेजता है, एक अलग पैकेट है, एक अलग कम्युनिकेशन है। तो रिस्पॉन्स इज नॉट द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ये है कि इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मैंने कहा किस जगह रफी आपको समझ आई और आपने सर हिला दिया, इसका मतलब कि आपने ये आपकी एक्नॉलेजमेंट, आपको मैं कहूंगा ये आपका रिस्पॉन्स है। एक्नॉलेजमेंट ये है कि ये पैकेट पहुंचे, आप रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन मेरे पास एक आ जाए कि पैकेट बढ़ता हुआ रश। बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अगर वो आपको लेट करेगा, आपने पिंग किया, वो आपको जवाब नहीं देता, तो आपको एक्नॉलेजमेंट तो नहीं मिलती। सिर्फ उसने जवाब नहीं दिया इसलिए आपके पास कुछ नहीं आता। गेटिंग? नाइस एवरीवन, गुड। तो कहता है इफ देयर इज अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा आईपी का ये मसला है, ये पूरा नेटवर्क ही बेकार है? तो कहता नहीं, ये काम कोई और करता होगा, लेकिन आईपी का ये काम नहीं। मिसाल के तौर पे एक्नॉलेजमेंट है तो टीसीपी करेगा, ये किसी और का काम है। बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कल आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और आप लेट रिज्यूम कर रहे हैं कि आप जहाज तक भी पहुंच गए हैं, और वहां पे आप पायलट को कहेंगे टिकट वर्कर, वो कहेगा मेरा ये काम नहीं। या आप वहां जाके पायलट को ये राशा सामान लगता गाड़ी के जहाज के ये मेरा काम नहीं। तो इस तरह ये आईपी का काम नहीं है कि कनेक्शन बनाए, आईपी का ये काम नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करे। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, अगर समझ आ रही है तो नेक्स्ट है, मैंने जैसे कहा बेस्ट एफर्ट। क्या है? बेस्ट एफर्ट, वेरी नाइस। अपनी तरफ से खूब कोशिश करो। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखिए तो सोर्स ने 3 पैकेट बनाए,
नेटवर्क के हवाले 3 पैकेट हुए, लेकिन डेस्टिनेशन मशीन को 2 मिले। इसके मतलब एक रास्ते में कहीं गायब हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ये क्या है? सब इसने क्या कुछ अपनी कोशिश में कमी की? नो, इसने तो भेजा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज बेस्ट एफर्ट। इसने अपनी तरफ से 3 पैकेट बनाए, प्रॉपर बनाए, क्योंकि इनमें किसी एक पैकेट में भी कोई कमी नहीं थी, सब डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कंप्लीट थे। लेकिन मे बी जब ये एक पहुंचा तो वहां पे राउटर में, बफर में जगह नहीं थी, ड्रॉप हो गया और 2 पहुंच गए। व्हाट आई शुड कॉल देम? I will call that this method, this mechanism is best effort only. Clear? आप कहेंगे फायदा क्या है कि बेस्ट एफर्ट में वहां पे कनेक्शन नहीं बनाया, यहाँ पे बेस्ट एफर्ट पे तसल्ली की? 2 वजह है। या तो ये काम कोई और कर रहा है तो मैं क्यों करूं? जैसे भी कहा कि पायलट का काम टिकट देना नहीं है, या आपका बैग उठा के जहाज के अंदर रखना नहीं है, तो वो क्यों करे? इसका फायदा क्या हुआ कि ये प्रोसेस, अब पायलट को ये काम नहीं है कि जहाज भी उड़ाना है और साथ लोगों के सामान भी उठा उठा के देने हैं। तो आपने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ वही काम उसके हवाले किया जो वो कर सकता है, एक्स्ट्रा काम उसके जिम्मे नहीं डाले। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए हम, इससे क्या फायदा हुआ? आपका ओवरहेड, अभी मैंने कहा था 20 बाइट, अगर ये काम भी इसके हवाले करते थे, कनेक्शन भी बनाओगे, एक्नॉलेजमेंट भी लोगे, बेस्ट एफर्ट भी नहीं करोगे, रिलायबल भी हो जाओगे, तो फिर ये 20 की बजाय हो सकता है 200 बाइट होते। हर पैकेट के साथ, हर पीडीयू के साथ, हर ट्रांसपोर्ट लेयर के पीडीयू के साथ आप 200 बाइट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते, परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली जाती। बात समझ आ रही है? सो यही वो कह रहा है कि IP has reduced overhead. That is a very important point in networking and everywhere. If you have to succeed, keep the overhead low. जैसे आपकी लाइफ है, आप इसमें जितनी वो चीजें ऐड कर दें, लाइफ उतनी मुश्किल हो जाएगी। जितना आज से 50 साल पहले के लोग, उन्होंने kept their life simple, they were relaxed. ठीक है? फिर क्या कहते हैं जी? Since there is no mechanism to resend packet data if that is not received, come in ishta, no acknowledgement. IP does not know if other device is operational or if it will receive or not. So that is all the points towards best effort. फिर मैंने कहा कि जेंटलमैन, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने भी कहा कि मेरा पैकेट जूम के पास जा रहा है, जूम के थ्रू 10 लोग ऑनलाइन हैं, उनके पास जा रहा है। वेरी नाइस। रास्ते में कभी कॉपर है, तो कभी एयर है, कभी फाइबर है, कभी वो फाइबर जमीन में बरिड है, कभी वो फाइबर समंदर में पड़ा हुआ है। आईपी को गम निश्ता। इसलिए हमने कहा कि जी इट इज मीडिया इन, आईपी इज मीडिया इंडिपेंडेंट. IP does not concern itself with the type of the frame required at the data link layer or the medium type at the physical layer. कभी नहीं कहा आपके नेटवर्क लेयर में कि कॉपर मस्ट दे, कभी नहीं कहा कि फाइबर मस्ट दे, कभी नहीं कहा कि वायरलेस मस्ट दे. कहा जो अवेलेबल है आई डोंट केयर. यही वजह थी कि क्वेश्चन किया लास्ट टाइम उस पे नासिर ने कि जी क्यों अलग एक लेयर बनाई, डेटा लिंक लेयर इसलिए बनाई कि ये काम हमने मीडियम का काम उसके हवाले किया हुआ है कि तुम टेक कर करो, आईपी को रिलैक्स कर दिया. अदरवाइज अगर डेटा लिंक लेयर ना होती तो फिर आईपी को मीडियम का भी ख्याल रखना पड़ता, मीडियम को एक्सेस करने का भी ख्याल रखना पड़ता, वो बहुत हैवी हो जाता. और फिर मैंने कहा कि आईपी इज अनरिलायबल. अभी बताया ना ही ये इस चीज का परवाह करता है
क्योंकि आपको पता है कि आईपी का नेटवर्क जो है वो कोई यूं नहीं होता कि एक राउटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ यूं लगे और ये एफबी पे पहुंच गए या जूम पे पहुंच गए या नेटकैट पे पहुंच गए. नो, देयर विल बी मल्टीपल इंटरफेसेस लाइक दिस. देयर विल बी मल्टीपल इंटरफेसेस लाइक दिस, मल्टीपल इंटरफेसेस लाइक दिस. ऐसा ही है ना? एंड फाइनली लाइक दिस. तो हो सकता है कि एक पैकेट सीधे रेड रास्ते पे चला जाए, हो सकता है कि दूसरा पैकेट इस रास्ते से, येलो रास्ते से जूम के पास पहुंचे. हो सकता है कि तीसरा पैकेट जो है वो ग्रीन रास्ते से होके इस तक पहुंचे. हो सकता है इसका मकसद ये हुआ कि हो सकता है कि आपने सोर्स में तो यहां से पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 भेजे. हो सकता है कि जूम पे या नेटकैट पे पहले पैकेट नंबर 4 पहुंच जाए, फिर 5 पहुंचे, फिर 1 पहुंचे, फिर 2 पहुंचे और सबसे आखिर में 3 पहुंचे. यस, कोई ऑर्डर की कोई जमा आईपी का नहीं है. वो कहता है पहुंच गया, बस बेस्ट एफर्ट, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया. इट माइट बी आउट ऑफ ऑर्डर. इट माइट बी के रास्ते में कोई किसी में एरर आ जाए. मिसाल के तौर पर मालूम हुआ कि पैकेट नंबर 5 तो करप्ट है. आईपी डजंट केयर. ये कह रहा है अगर ये करप्ट है, आईपी ने कभी नहीं कहा कि मैंने अपने पास रखना है और दोबारा तो मैं भेजूंगा. नहीं, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द आईपी लेयर. वो कहता है आईपी कैन नॉट ट्रांसमिट आफ्टर एन एरर. आईपी कैन नॉट रीअलाइन आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट. आईपी का ये काम नहीं है कि अच्छा 4 5 1 2 3 रिसीव हुए हैं, मैं खैर आपके लिए ठीक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 कर देता हूँ. नॉट एट ऑल. ठीक है मोसे, समझ आ रही है कि जरूर लगे हुए हो? अच्छा, तो फिर क्या कहता है? इट मस्ट रिलाई ऑन अदर प्रोटोकॉल. यानी ये काम लाजमी तौर पे जरूरी तो है. कहता है मेरा काम नहीं है, अदर प्रोटोकॉल्स माइट बी देयर विच विल बी डूइंग दिस. दैट द रीजन वी कॉल दैट दिस, एटलीस्ट नॉट द नेटवर्क बट आईपी इज अनरिलायबल. आईपी इज अनरिलायबल. तो चारों बातें आपको समझ आ गई. कनेक्शनलेस किसे कहते हैं, अनरिलायबल किसे कहते हैं, बेस्ट एफर्ट किसे कहते हैं, मीडिया इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं. इन चार में अगर कोई भी आपका क्यूरी है तो बिल्कुल बात करें. क्लियर है? ओके. अगर ये क्लियर है तो फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो है IPv4 का हेडर. जब ये हेडर लगता है सेगमेंट के साथ तो वो बन जाता है IPv4 पैकेट या IPv4 डेटाग्राम, या आप इसको आईपी नेटवर्क पीडीयू भी कह सकते हैं. ओके. तो अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने कहा कि आईपी के 4 काम हैं, शुरू में हमने बात क्या है, इनकैप्सुलेशन, और अगर यहीं पे डीकैप्सुलेशन भी डालते हैं तो बस यहीं पे क्या लें, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, एड्रेसिंग एंड राउटिंग. ये 4 काम हमने कहे थे. इस 4 कामों के लिए स्पेशली, इन कामों के लिए हम ये 20 बाइट्स बाय डिफॉल्ट ऐड करेंगे, जो कि अभी आप सीख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपको नजर आ रहा है कि भाई सोर्स का आईपी होना जरूरी है. किसने भेजा, डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी रफी ने कहा कि जी मैं कोई वेब पेज पे जाता हूं, मुझे वहां से कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि आपने उसको अपना सोर्स एड्रेस दिया है. तो वही सोर्स एड्रेस इस्तेमाल करके एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस आपको वापस जवाब दे देता है. ठीक है सुमैया? ओके.
तो कहता है जी द नेटवर्क हेडर हैज मेनी पर्पसेस। कौन कौन से? इट इंश्योर्स द पैकेट इज सेंड टू द करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डेस्टिनेशन। वो कैसे पता चलेगा? कि वो डेस्टिनेशन का एड्रेस डालेगा 4 बाइट का, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो ये डाल के वो इंश्योर करेगा कि सही जूम के पास ही जाएगा। नंबर 2, इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क लेयर प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो अभी हम बताते हैं कि वेरियस फील्ड्स क्या है। 5 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स, और हर वर्ड 32 बिट का है। हर वर्ड 32 बिट का है। और आपको पता है कि 32 बिट का मतलब 4 बाइट्स। इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनता है? 20। बार बार का 20 बाइट्स। और फिर कहता है कि द इंफॉर्मेशन इन द हेडर इज यूज्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस दैट हैंडल द पैकेट। जिसके पास ये पैकेट जाएगा लेयर 3 डिवाइस के पास, वो ये आपका हेडर डेफिनेटली रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, एक्ट करेगा अकॉर्डिंगली और आगे भेज देगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैंने आपके सामने वो हेडर ले ही आया कि ये वो हेडर जो कि मैंने कहा 20 बाइट्स का है बाय डिफॉल्ट। इससे ज्यादा हो सकता है, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन मिनिमम 20 बाइट्स। जी, इसलिए तो हमने लास्ट स्लाइड में ये बात बार बार लिखी कि जी बल इनकैप्सुलेशन भी करेगा, डीकैप्सुलेशन भी करेगा, री इनकैप्सुलेशन भी करेगा। लेयर 3 का ओके। मिसाल के तौर पे मैंने यहां से एक पैकेट भेजा किसी भी नेट कैट के लिए, तो लाजमी तौर पे यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ है इसकी मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मानते हैं? लाजमी तौर पे ये पढ़ेगा कि नेटवर्क लेयर का हेडर पढ़ के ये देखेगा कि इसकी डेस्टिनेशन कौन सी है। अगर लेट करें ये तरफ यूएस की तरफ गया हुआ है, ये रशिया की तरफ गया हुआ है, ज्यूम कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया हुआ है, ये इंटरफेस, और ये अफ्रीका की तरफ गया हुआ है। अगर आपने डेस्टिनेशन में लिखा है मिसाल तो पे नेट अकैड, तो नेट अकैड का कोई आईपी है? मानते हो कि नहीं? यस और नो? है। तो उसका एक आईपी है। तो ये आईपी डेस्टिनेशन का आईपी देख के ये डिसाइड करेगा कि इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन शोन इन येलो। अदरवाइज तो फिर हो सकता है कि अमेरिका का पैकेट कहीं ऑस्ट्रेलिया में नजर आता हो, पाया जाए। इसलिए इट हैज टू रीड द हेडर दिस राउटर एंड अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या यूएस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? हरगिज नहीं। हो सकता है कि इसको किसी ने कहा हो कि जी अगर आप यूएई के हवाले कर दो तो इसको पता है कि यूएस तक कैसे पहुंचना है। यूएई वाले को ये पता है कि मिसाल के तौर पे यूरोप कैसे पहुंचना है। यूरोप वाले को पता है कि अमेरिका कैसे पहुंचना है। और यहां पे नेट अकैड आपका पड़ा हुआ है। तो हर एक नहीं, हर एक राउटर नहीं आपके, इसलिए तो कहा कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, जो कि आपको पता है कि ये भी 4 बाइट का है और ये भी 4 बाइट का है। तो ये 4 बाइट ऑफ डेस्टिनेशन देखकर ये राउटर ने डिसाइड किया कि जी इस इंटरफेस पे निकालना है। यहां भी मल्टीपल पाथ थे। श्योर, लाजमी तौर पे, क्योंकि ये लेयर 3 डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बड़ी खामोशी है आपकी तरफ से। आमिर, कायनात, इशफाक, नूरुल हक, लगता है लाइबा फिर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। सर जी ये री इनकैप्सुलेशन किस तरह होता है? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन तो समझ आ रही है, ये री इनकैप्सुलेशन कौन सी नहीं बला है, तो क्लियर कर देता हूं जी। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन था। इनकैप्सुलेशन का मतलब तो होता है कि आप अपना हेडर ऐड कर दें, एडिंग दी हेडर। डीकैप्सुलेशन का मतलब है रिमूवल माइनस ऑफ हेडर, और री इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि आप अब नया हेडर, न्यू हेडर ऐड करें, न्यू हेडर ऐड करें। यानी मिसाल के तौर पे जैसे यहां पे आपको बताया कि यहां पे आपने लिखा हुआ था कि सोर्स मेरा ये है, सोर्स मैं हूं, डेस्टिनेशन ये है। जब यहां पे पहुंचा तो ओ उसमें उस हेडर में कुछ चीजें तब्दील करनी थी, तो लाजिमी तौर पे पहला हेडर हटाना था और नया हेडर लगाना था। इस नए हेडर को लगाने को री इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जी बात समझ आई? यस सर। थैंक यू। तो कंटिन्यू करते हैं जी, समझ आ गई है। तो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट ये कि जनाब आपके ये जो हेडर है, अब आपको समझ आएगी कि हर प्रोटोकॉल जिसमें वन ऑफ देम इज द आईपी वर्जन 4 always have a syntax and always have a semantic. ओके, सेंटेक्स से क्या मतलब है? सेंटेक्स का मतलब ऑर्डर है। ऑर्डर से मुराद कि अगर ये पहली 4 बिट यहां पे आनी है तो ये आप नहीं कह सकते खैर आखिर का बोला तो ये नहीं कह सकते कि जी सोर्स एड्रेस डेट इंपॉर्टेंट दे दावा मखियोला जहां है ऑर्डर, जहां जहां पे एक दफा चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं, एवरीवन हैव टू फॉलो द सेम। जैसे मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश में भी आप करते हैं, मिसाल तौर पे मैं लिखता हूं आई गो टू बाजार। अगर इसी को ये बना दिया जाए बाजार गो आई टू, वर्ड तो वही है, ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर बदला तो सब कुछ तबाह हो गया। बाजार गो आई टू क्या कौन सा जुमला है, कौन सी इंग्लिश है? गुलाबी। ठीक है ना? इसलिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, सेंटेक्स इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? सिंटेक्स बात समझ आ गई। अब हम हर एक, मैंने जैसे पहले कहा कि आपको नजर आ रहा है कि 4 बाइट्स हैं, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4। इसका मतलब है कि 4 बाइट्स का एक वर्ड है, इसको मैं ये 1 वर्ड कह सकता हूं, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है, ये फोर्थ वर्ड है, ये लास्ट यानी 5th वर्ड है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 5 वर्ड्स का विच इज इक्वल टू 32 बाइट्स, 20 बाइट्स, सॉरी 20 बाइट्स is the equal to the IPv4 header. तो जेंटलमैन, अगर ये बात यहां तक, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो करें। वर्ड क्यों कहते हैं आपको पता है? वर्ड इसलिए कहते हैं कि हार्डवेयर के लोगों का ये पता है कि एक खास नंबर ऑफ बिट्स इज गिवन टू दी एट वन टाइम ड्यूरिंग वन साइकिल इज गिवन टू द प्रोसेसर और फेच फ्रॉम द रैम। तो पुराने जब पहले वाले थे तो 16 बिट के प्रोसेसर थे, फिर 32 बिट के। आज आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मेरा विंडोज या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरा हार्डवेयर 64 बिट का है, तो दिस 64 बिट इज इक्वल टू 1 वर्ड। लेकिन जब ये 80s की बात है उस वक्त वर्ड साइज वाज 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स।
ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि इस बात पे कि इसमें सबसे पहली 4 बिट्स, सबसे पहले वर्जन को देखते हैं, और मैंने कहा ये 4 बिट्स पे मुश्तमिल है। तो ऑर्डर क्या है कि पहली 4, मीनिंग क्या है कि ये बताएगा कि क्या ये पैकेट IPv4 का है या IPv6 का है। क्योंकि अगर आपने IPv4 का पैकेट IPv6 के हवाले कर दिया या 6 का पैकेट 4 के हवाले कर दिया, गार्बेज है। अब तो पैकेट में कोई मसला नहीं है, हेडर में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उसको समझने वाला है वो कहेगा कि इट इज गार्बेज। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि वर्जन जो है ये बताती है कि किस को दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क लेयर पे IPv4 भी है और IPv6 भी है। तो ये जरूरी है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल के हवाले किया जाए, तो वो यहां से पता चलता है। क्लियर होगी मेरी बात? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट जो फील्ड है उसके ऊपर क्लियर लिखा है इंटरनेट हेडर लेंथ, और ये भी 4 बिट्स का है। तो इसका मतलब नेक्स्ट इज इंटरनेट हेडर लेंथ, 4 बिट्स का है। तो मैंने कहा, अभी क्लियर किया कि ये मिनिमम 20 बाइट्स हैं। ये तो नहीं कहा फिक्स 20 बिट्स हैं, 20 बाइट्स हैं मिनिमम का। इसके मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। उस मशीन को कैसे पता चलेगा कि मैं कितने बाइट्स तक रीड करूं तो ये हेडर है और उसके बाद पेलोड है? तो बताना पड़ेगा कि जी ये क्या, ये 20 बाइट्स हैं, 24 बाइट्स हैं, 28 बाइट्स हैं, 32 बाइट्स हैं, एंड सो ऑन। इसलिए जरूरी है कि पहले बताओ कि कितने बाइट्स का ये हेडर जो तुम लगा रहे हो मिस्टर मशीन, पहले बताओ कि इसका साइज क्या है, इसका लेंथ क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि शैला, ये हेडर का लेंथ मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? शाबाश, एनीवन। ये जो आपके सामने अब क्लियर नजर आ रहा है हेडर, ये कितने से कितने बाइट्स तक का हो सकता है? 0 to 15 की बात दुरुस्त कि 4 बिट्स के अंदर 000 से लेके 111 तक आ सकता है। इसका मतलब इट कैन बी हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू 15। क्यों सर, गलत है कि ठीक है? लगता तो ठीक ही है, लेकिन यहां तो 20 लिखा हुआ है, मिनिमम 20। ये तो 0 से लेके 15 तक मेजर कर सकता है। ये वर्ड्स हैं, तो ये कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? तो इसका मिनिमम जो है दैट इज 5 वर्ड्स। तो इट कैन हैव ए मिनिमम ऑफ 5 वर्ड्स और इट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 15 वर्ड्स। तो अगर आप इसको बाइट्स में देखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, क्योंकि एवरी वर्ड इज अ 4 बाइट्स। इसका मतलब द मिनिमम साइज इज 20 बाइट्स, द मिनिमम साइज इज 20 बाइट्स एंड द मैक्सिमम साइज इज 60 बाइट्स। बस बात खत्म। But 99.99% it will be always 20 bytes minimum. Yeah? तो यहां से ये पता चला कि इंटरनेट हेडर लेंथ में क्या जा रहा है और उसका मीनिंग क्या है। देखिए ऑर्डर है, अगली 4 बिट्स हेडर का लेंथ बताएंगे, फिर अगली 8 बिट्स जो कि बाई 2 है, ये 8 बिट्स क्या बताएंगी? इसको पुराने केस में TOS कहते थे, टाइप ऑफ सर्विस,
और अब लेटेस्ट उसमें इसको डीएस कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सर्विस। डिफरेंशिएटेड सर्विस, पहले इसको टाइप ऑफ सर्विस कहते हैं। क्या मतलब है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे नाम से जाहिर है, दोनों का नाम बदल दिया, काम सेम है। डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप बैंक की में क्यू में खड़े हैं और एक पुलिस वाला भी आ जाता है, अगर खफा ना हो तो एक फौजी भी आ जाता है। वो सारी क्यू को कहता है पुदरे गई, खुद आके फौजी साहब कहते हैं मैं पहले जाऊंगा क्योंकि मैंने वर्दी पहनी है। पुलिस वाला कहता है मैं भी आगे जाऊंगा, मैंने भी वर्दी पहनी है। और बैंक मैनेजर साहब भी कहते हैं बिल्कुल डोंट डोंट टिक हुई, इनका काम पहले करना चाहिए। what is being provided? Quality of service to that, differentiated service to that। या अगर आप मिसाल के तौर पे कभी ट्रैवल करें एयर थ्रू एयर, तो क्या कहते हैं, पहले बिजनेस क्लास वाले आ जाएंगे और आखिर में इकोनॉमी क्लास वाले आ जाएंगे। व्हाट इट इज? क्वालिटी ऑफ सर्विस, डिफरेंशिएटेड सर्विस। तो अगर आप नेटवर्क के अंदर भी ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे वॉइस की ट्रैफिक को पहले भेजा जाए या उसको प्रायोरिटी दी जाए, द राइट वर्ड इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, किसी को दूसरे पे प्रायोरिटी दी जाए। मिसाल पे वैसे अभी का रियल टाइम ट्रैफिक है, वॉइस है, वीडियो है, मे बी नीड मोर अटेंशन। या फॉर एग्जाम्पल को ईमेल है, तो क्या बोथ शुड हैव इक्वल प्रायोरिटी? नॉट एट ऑल। ईमेल अगर 2 मिनट में ही पहुंच जाए तो डजंट मैटर, अगर वॉइस का पैकेट 2 मिनट के बाद पहुंचे तो इट इज ऑफ यूजलेस। ठीक है ना? इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, काम आता है दिस डीएस, डिफरेंशिएटेड सर्विस। और इसमें ये 6 बिट्स जो है पहले, जिसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, डीएससीपी। इस डीएससीपी का काम है कि डिफरेंशिएटेड सर्विस या प्रायोरिटी दे। मेक सेंस? और आखिरी 2 बिट्स जो हैं ईसीएन, आखिरी 2 बिट्स ईसीएन, जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। तो जनाब मैं यहां लिख देता हूं ग्रीन पेन से कि डीएस जो है ये 8 बिट्स का है। मकसद तो समझा रहा हूं साथ साथ। अब इसमें जो 2 मैंने कहा कि 2 में ये डिवाइड होता है, पहली 6 बिट्स तो क्लियर कर दिया डीएससीपी, लेकिन ये याद बताऊं इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाजमी तौर पे आपने कहा 6 बिट्स हैं। इट कैन बी फ्रॉम 00000 अप टू 111111। एग्रीड? लेकिन इस 000 का क्या मतलब है? या इसके बाद 000001 है, उसके बाद 000010 है। व्हाट इट मीन्स? या तो पूरी दुनिया की मशीनें इस पे एग्री कर जाएं कि जी इसका मतलब हाई प्रायोरिटी है और इसका मतलब लो प्रायोरिटी और वाइस वर्सा, फिर तो बात बनती है। लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन फ्यूचर में मे बी यूज्ड। क्योंकि हर राउटर अगर ये समझता हो तो फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक एयरपोर्ट से दूसरे पे गए, उनको पता ही नहीं कि इकोनॉमी किसे कहते हैं और बिजनेस क्लास किसे कहते हैं, तो डेफिनेटली वो सारा प्लान खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे जी, हो सकता है वो कहें कि ये जो अगली सफों में बैठे हुए थे वो सबसे आखिर में आए। क्लियर? इसलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं जी। ये मेथड आईपी नहीं दे सकता। आईपी में फैसिलिटी रखी गई लेकिन इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी ये नहीं दे सकता।
कोई और देगा, लाजमी बात है। ओके, फिर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल की, ECN, सॉरी ECN। जेंटलमैन, पहले ये पता होना चाहिए कि कंजेशन कहते हैं किसे, फिर लाजमी तौर पे कंजेशन की नोटिफिकेशन होगी। तो पहले ये पता होना बेहतर है कि हम ये एक्सप्लेन कर लें कि कंजेशन कहते किसे। जी कह सकते हो, ठीक है। तो कंजेशन के मेरे DCSE के स्टूडेंट ने कहा कि कंजेशन का मतलब है कि हर एक मशीन का अपना एक बफर है, और बफर फाइनाइट साइज का होता है, तो कोई शक शुबा नहीं है। लेट करें ये 10 मेगाबाइट्स का है, 100 मेगाबाइट्स का हो, ये फिक्स है। अब लाजमी तौर पे जब पैकेट